Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of one short revision series for your first term for the subject English. Flamingo, we have completed chapter number 3, Deep Water, and chapter number 4, Rat Trap. In this video, I'll cover the poem number 4, A Thing of Beauty, written by John Keats, that is as well from Flamingo. So let's start the poem. First introduction of this poem, the poem A Thing of Beauty, written by John Keats, is about the poet's view on beauty and its importance in life. So what is described? The poet's view. Poet's view, how the poet is thinking. John Keats, what John Keats thinks about the beauty and what is the importance of that beauty in the life. Before moving further, I would like to tell that John Keats belonged to the Romantic period, the theme of which was return to nature. So here the narrator is telling that John Keats basically belonged to the Romantic period. He was a romantic poet, that he has to written all the poems like that based on the nature. Means he has a basic love towards the nature for him, and the poem that he has is based on the theme of romantic poetry. Return to nature. This was the theme that this poem is based on, this theme, and the name of this poem is A Thing of Beauty. This was the introduction. Now let's have some information about the poet John Keats. So he is John Keats. He was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to illness. Very young age. In very young age he died just because of the tuberculosis. सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. He is a romantic poet and his poetry is characterized by sensual imagery in his most popular work, which is a series of odes. A lyrical poem which is meant for a subject. तो उनकी जितनी भी पोम होती हैं दैट इज रिलेटेड विद सम ऑफ द रोमांटिक फील इज देयर बिकॉज ही वाज रिगार्डेड एज अ रोमांटिक पोएट एंड उन सारी पोइम में कुछ एक इमेजरी इज कॉल्ड द thing that force you, that your mind itself started creating the image, that is called imagery. एंड उनका जो मोस्ट पॉपुलर वर्क था वो एक सीरीज थी ओड्स की. ओड्स क्या होता है? अ लिरिकल पोम, अ रिदमिक पोम जिसमें कि किसी एक सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है. एंड टुडे हिज पोम आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रिएशंस इन द इंग्लिश लिटरेचर. उनकी जो जितनी भी उन्होंने पोम्स लिखी थी 25 ईयर्स की एज में, वो बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का. Background of the poem is A Thing of Beauty, that is based on the Greek mythology about a shepherd named Endymion. Shepherd, we can say the person who takes for the grazing the herd of the sheep, जिसको गड़ियरिया बोलते हैं, जो sheeps को लेके जाता है herd of the sheep. तो एक shepherd था जिसका नाम था एंडीमियन. पे ये एक ग्रीक माइथोलॉजी है, जैसे हमारी होती हैं रिलीजियस स्टोरीज होती हैं, रामायण की, महाभारत की, पंचतंत्र की हैं, अमर चित्र कथा है. सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी लिटरेचर में भी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसकी एक स्टोरी है, उस पे ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोम है उससे ली गई है, उस पे बेस्ड है ये. तो एक शेफर्ड होता है जिसका नाम एंडीमियन होता है. हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, एंड हाउ इज क्वेस्ट ही फॉल्स इन लव विद द अर्थली मेडन. क्वेस्ट इज कॉल्ड वी कैन से ना द क्वेंच. ठीक है, तो उसकी जो क्वेस्ट है, ही वॉज इन लव विद डायना and he falls in love with the earthly maiden. Maiden is called the lady who is not married, who later turns to a Dinah herself, laid out to be Dinah herself. तो ये एक mythological imaginary story है और उस पे ये poem based है, A Thing of Beauty, written by Mr. John Keats. तो हमारे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि क्या thing of beauty, what are the things of beauty present in this world and what is the importance of those beauties in the life. स्टार्ट करते हैं. दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज सम ऑफ द एलैबोरेटेड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट विद द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दैट टेक्स्ट ओनली, एंड आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग एट वन प्लेस, तो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर. तो चलो पहले पढ़ते हैं. ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेंजा. थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इसमें जो न्यू वर्ड है आपका है वो है बोअर. बोअर इज कॉल्ड अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री. नीचे मतलब झुका हुआ, जो जिसके ऊपर आपको छाया मिले, बोअर. ठीक है, तो छायादार आप जगह बोल सकते हो. सो हियर द पोइट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. स्टे, ब्यूटी हमेशा रहती है. एंड जो इसका वी कैन से ना द लवलीनेस,
increases, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ती जाती है, it never fades away. And whether it increases with the passing time, the perception of the poet regarding beauty is that it never goes off. ये क्या कहना चाहता है पोइट की जो जितनी भी ब्यूटी चीज़ें होती हैं, जिनमें ब्यूटी होती है, उनकी ब्यूटी टाइम के साथ बढ़ती जाती है रेदर देन फेड अवे. मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आप देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद दे आर और जस्ट गोइंग टू लूज इट्स शाइन, इट्स रस्टेड. बट जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो नेचर में मौजूद हैं, उनकी ब्यूटी टाइम के साथ हमेशा बढ़ती जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है. एंड द परसेप्शन ऑफ द पोइट, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का जो तरीका होता है, जो नज़रिया होता है वो. बट विल कीप बोर क्वाइट फॉर अस पास इन टू नथिंगनेस. नथिंगनेस का मतलब इफ यू आर जस्ट इन द कंपनी ऑफ एनी ब्यूटिफुल थिंग देन यू विल नेवर फील एम्प्टी. यू आर फिल्ड विद द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस दैट यस बिकॉज दैट ब्यूटीफुल थिंग गिव्स यू अ बोर. मीन्स आपको ऐसा लगता है आप किसी की छाया में बैठे हो. छाया का मतलब क्या हुआ? आराम, कंफर्ट, ईजीनेस. The same thing he is saying here, that it never goes off with the passing time, rather it beautifies more and more. And for the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. जैसे ये यहाँ पर जगह है, अब यहाँ पर देखो कितना मीन्स शेडी ट्री है, तो when whoever is coming in the under the shade, that creature will definitely feel the peace and comfort and happiness. ठीक है. सेम एज ये जो शेड है, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्यूटी ऑफ द नेचर, इट विल नेवर फेड अवे. कैन द ट्री बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द नेचर? नो. अगर ट्री डिसअपियर हो जाएंगे, वी विल नॉट बी हियर, वी विल ऑल्सो फिनिश. तो ट्री कभी भी खत्म नहीं होंगे. एक ट्री होगा, उसके बाद दूसरा ट्री आएगा. मीन्स दीज आर नेवर एंडिंग. दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट ब्यूटी इज नेवर एंडिंग. ये कभी खत्म नहीं होती है, बट टाइम के साथ साथ फेड भी नहीं होती है. ब्यूटी इसकी बढ़ती जाती है. द इम्पॉर्टेंस एज वी आर नॉट हैविंग, अगर हम देखें, वी आर नॉट हैविंग टुडेज लाइफ टू गो एंड सिट इन द नेचर इन द कंपनी ऑफ द नेचर, बट वेन एवर वी आर गेटिंग ना, वी आर रेदर डाइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ टाइम. हम लोग को टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है कितना अच्छा लगता है. वो जो मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलती. वाई? बिकॉज दोज आर द पीसफुल मेमोरीज. तो जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर में, वो हमको क्या देती हैं? वो हमको पीस देती हैं. और हमको क्या देती हैं? वी कैन हैव द स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स. फुल ऑफ ड्रीम स्लीप से क्या मतलब है? यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप. साउंड स्लीप कब आएगी? जब योर माइंड इज पीसफुल. बहुत सारी परेशानियां हैं, बॉदरनेस है, तो आपको नींद कैसे आ सकती है? जब पीसफुल, एकदम पीस रहेगा माइंड, आपको नींद अपने आप अच्छी आएगी. जब नींद अच्छी आएगी तो आप हेल्दी रहेंगे और अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे. ब्रीदिंग इज कॉल्ड, यू कुड बी अ वेरी हेल्दी पर्सन. सो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग. लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स इन द नेचर आर वेरी मस्ट. Why? Because it gives you peace. Peace will make you healthy. Healthy will make you a person who can easily live with comfort in this world. I hope it is clear. लिटरेरी डिवाइस देखते हैं. राइम स्कीम सबसे पहले देखते हैं. AABBC या राइम स्कीम आई होप यू नो. मैं तो एक बार मैं क्विकली जस्ट टेल यू, मैं बता देती हूँ फटाफट. राइम स्कीम के लिए वी हैव टू सी द लास्ट वर्ड ऑफ ईच एंड एवरी लाइन. लाइक दिस इज द फर्स्ट लाइन. लास्ट वर्ड इज former and then never and then keep, sleep and then उसके बाद हमारा आता है breathing. This is the last word. So ये last word हमने underline किया. Now we have to take out the rhyme scheme. The rhyme scheme is called, you are giving a sequence to the rhyme. Rhyme मतलब poem में एक rhyme होती है, tone होती है एक. तो जो भी word जिस word से rhyme करता है, tone करता है, उसमें same alphabet लिखा जाता है. Sequence के लिए आप कुछ तो करोगे 1 2 3 या छोटे आ बड़े आ काका गागा, ये हिंदी का हो गया, वो मैथ्स का हो गया, इंग्लिश में हमारा ABCD बचता है, तो उससे हम राइम स्कीम निकाल सकते हैं. तो हमको राइम स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? स्टैंजा में जो लास्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद सीक्वेंस देंगे अल्फाबेटिकल मैनर में. लाइक फर्स्ट वर्ड फॉरएवर, तो हमने इसको सीक्वेंस दे दिया. सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे A से. ठीक है, हमने इसको A दे दिया. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नेवर. नाउ यू सी फॉरएवर, नेवर, forever, never. Are they rhyming? Yes, they are rhyming. So we will write the same alphabet. The alphabet forever is A, तो यहाँ पे भी हम A लिखेंगे. ठीक है. Next, दो लाइनें हो गई. अब थर्ड लाइन पे आते हैं keep. Now see, keep is rhyming. Forever, keep. Never, keep. No, it is not rhyming with either. तो हम इसके आगे वाला alphabet लिखेंगे. That is B. क्यों लिखा हमने आगे वाला? क्योंकि ये rhyme नहीं कर रहा है, ये अलग rhyme कर रहा है, तो अलग alphabet लिखेंगे. फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्लीप. नाउ सी राइम. फॉरएवर, स्लीप. नो, इट्स नॉट राइमिंग. नेवर, स्लीप. नो. कीप, स्लीप. कीप, स्लीप. यस, इट इज राइमिंग. तो कौन से वर्ड से राइम कर रहा है? कीप से. तो कीप का अल्फाबेट हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज
B. Now last word आता है हमारा breathing. Now breathing is matched forever, breathing, keep breathing. No, it is not matching with anyone, यानी कि न्यू वर्ड है, न्यू राइम हो गई तो हम यहाँ पे न्यू अल्फाबेट लिख देंगे, दैट इज C. ठीक है, और इसके बाद इसको राइमिंग को कैसे लिखते हैं, लाइक दिस AABBC. आप इसको आगे जाकर इस तरह से लिख देंगे और ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई AABBC. आई होप इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट, अब हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं. विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट, दैट इज एलिटरेशन. कौन सी लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे, एलिटरेशन. एलिटरेशन इज द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज. कोई भी कॉन्सोनेंट जब आती है, साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर आता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और एक लाइन में, मैं आपको बता दूं कि ये जो लिटरेरी डिवाइस लाइक स्ट्रेंजा इज वेरी बिग, दैट कैन बी ऑफ 2 लाइन 3 लाइन 6 लाइन 10 लाइन, तो सब में एक साथ नहीं देखते. लिटरेरी डिवाइसेज आर गोइंग टू फाइंड आउट वन बाय वन लाइन. ठीक है, एक एक लाइन में हम देखते हैं कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है. तो फर्स्ट इज एलिटरेशन. तो एलिटरेशन में जितने भी वर्ड आप जो देख रहे हो जो कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दे मस्ट कम इन अ लाइन. एक लाइन में हम देख रहे हैं कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, लाइन बाय लाइन देखते हैं हम. और वो जो वर्ड है वो क्लोज इन सीरीज का मतलब वो एक ही लाइन में आए हुए वर्ड होते हैं और या बहुत क्लोज होते हैं. लाइक यहाँ पर देखो, स्लीप एंड स्वीट. स्लीप इज स्टार्टिंग विद एस, स्वीट इज स्टार्ट विद एस, एंड एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये देखो, ये स्लीप एंड स्लीप. लेट मी प्लेस दिस. ये रहा आपका एस और ये रहा आपका एस. ठीक है, ये क्या किया है, या तो आप एक लाइन में देखोगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज इन सीरीज. एंड अ स्लीप, कॉमा के बाद एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. यहाँ पे कॉमा, यानी कि एंड से लेके ड्रीम्स तक ये जॉइन है, ये वन लाइन कंसीडर होगी. और इस वन लाइन में दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एस और एस से. मतलब ये जरूरी नहीं कि दोनों वर्ड पास हों, इट कैन बी नियर टू क्लोज, बट दोनों सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा, एलिटरेशन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर. नेक्स्ट कौन सी है हमारी, मेटाफर. बोअर क्वाइट, calmness of the boer. पहले मैं बता देती हूँ, मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वी आर कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेम है, उनको कंपेयर किया जा रहा है. भाई क्या सिमिलैरिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसकी कैरेक्टरिस्टिक से कैसे मैच कर रही है, क्या सिमिलैरिटी है, वहां पे मेटाफर लिटरेरी डिवाइस होता है. अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है, बोअर क्वाइट. ये जो वर्ड आ रहा है हमारा बोअर क्वाइट, इसमें मेटाफर है जो आपका यहाँ पे देखो, ये रहा आपका लाइन नंबर 4 में, दिस इज बोअर क्वाइट. यहाँ पे मेटाफर है. क्या बताया जा रहा है, कामनेस ऑफ द बोअर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग. दो ऑब्जेक्ट बताए गए हैं. अच्छा, जरूरी नहीं है दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हों, दोनों छूने या देखने वाले आपको भाई दिखने चाहिए, ऐसा नहीं है. वट एवर इज, क्योंकि पोम में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज पोम इज बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ द पोइट. ठीक है, तो आपको ये जनरेट करना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट मीनिंग, एंड दोज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, नॉट इट्स मस्ट दैट दे कैन बी रियलिस्टिक. तो ये जैसे ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्री यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, आप इसको देख सकते हो. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को मैच किया गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग. अब ब्यूटीफुल थिंग आर डिफरेंट फॉर एवरीवन. किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, बट ब्यूटीफुल थिंग से क्या होता है, वी गेट द काम एंड पीस. सेम एज व्हेन यू आर कमिंग इन द कंपनी ऑफ द ट्री, you can have the peace and calm. Why? Because you are under the nature. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन से हुए, एक ट्री हुआ, एक ब्यूटीफुल थिंग हुआ. ठीक है, तो इन दोनों की जो शेड है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी सिमिलैरिटी है, शेड. मतलब दोनों ही क्या प्रोवाइड कराती हैं, शेड प्रोवाइड कराती हैं और एक कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराती हैं. ये हो गया यहाँ पे मेटाफर. आई होप इट इज क्लियर. तो दो हमारी लिटरेरी डिवाइस हो गई, एलिटरेशन एंड मेटाफर इन दिस पैराग्राफ. ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे स्टेंजा में. Therefore, on every morrow are we weathering a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overtaken ways made for a searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from a dark spirit. This is the second stanza. See, this poem is not divided particularly in stanza. Okay, these are 4 line, 5 line, 6 line. See, as we have only this line.
ठीक है। हमारे जो लास्ट था उसमें हमने सिर्फ 6 लाइन 5.5 6 लाइन ली थी, इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। वाई? बिकॉज इट इज़ रिटन अब्रप्टली, ये फ्री स्टाइल लैंग्वेज में है, इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट इवन दैन वी हैव टेकन आउट। जो फ्री राइम स्कीम होती है, जो फ्री वर्स में होती हैं पोइम, मतलब जिसमें प्रॉपर स्टेंजा नहीं होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर राइम स्कीम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ ही नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेंजा कहाँ पे खत्म, सेकेंड कहाँ से शुरू। बट इवन दैन आई टोल्ड यू हाउ टू टेक आउट द राइम स्कीम। अगर बोला जाए कि भाई चलो बिगिनिंग की 4 लाइन में बताइए आप कौन सी राइम स्कीम है, तो लाइक दिस यू कैन टेक आउट। तो जो नेक्स्ट है स्टेंजा, आप बोल सकते हो लाइन्स, तो हम बोलेंगे फर्दर लाइन्स, ठीक है। तो आप पहले इनके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। मोरो, यहाँ पे जो मोरो आया है दैट मीन्स द फॉलोइंग डे, या वी कैन से टुमारो, ठीक है। ये टुमारो के फॉर्म में आया है। नेक्स्ट जो हार्ड वर्ड है वो आपका है रेदरिंग। रेदरिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग या encircle. This is the next word, reathering a flower band, a flowery band. So reathering आपका next word हो गया, surround या encircle, बुना हुआ, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं आपने देखा होगा, जो इस तरह के फ्लावर होते हैं जो क्रिसमस पे डोर पे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेदरिंग या रेथ होता है जो एक फ्लावरी बैंड। डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है डिप्रेस्ड या वेरी सैड। ग्लूमी अगेन इट्स अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है सैड। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? सैड। नाउ दिस इज कॉल्ड ओवर, यहाँ पे वी हिडन है। ओवर डार्कन, बहुत ज्यादा डार्कन, ये भी नेगेटिव वर्ड आया है यहाँ पर। डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स ऑल्सो शोइंग यू द देर इज नो एंथुजियाज्म, देर इज नो स्पिरिट, देर इज नो हैप्पीनेस। तो ये भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे इस पे जो ये लाइन्स हैं इनमें काफ़ी सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनके नेगेटिव मीनिंग है। ये अनहेल्दी, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। ह्यूमन डर्थ, डर्थ इज कॉल्ड लैक, ठीक है। डर्थ में लिख देती हूँ यहाँ पे, इट्स नॉट रिटन। डर्थ इज कॉल्ड समथिंग दैट इज लैकिंग और वांट, ठीक है। किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की लैक होना। इनह्यूमन इज कॉल्ड, ह्यूमन मीन्स काइंडनेस, इनह्यूमन इज कॉल्ड दैट इज अनकाइंड, ठीक है। इनह्यूमन क्वालिटी। चलो अब इसका एक बार से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयरफॉर यानी कि एवरी मोरो, मतलब हर दूसरे दिन, वी आर रेदरिंग, हम लोग बुन रहे हैं, हम लोग सराउंड कर रहे हैं, हम लोग इंसर्कल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर के बैंड को, यानी कि एक एक फ्लावर को हम चुन रहे हैं और उसको एक सर्कल में बन रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, बांध रहे हैं टू द अर्थ। यानी कि जो आने वाला जो भी एक कल है, जो ब्यूटीफुल थिंग है, वो हमको इस अर्थ से बांधे रख रही हैं। यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग है, दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू बाइंड एवरीवन ऑन दिस अर्थ। जो भी इस अर्थ पे है सब ब्यूटीफुल थिंग की वजह से एक साथ हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यानी कि सबके जीवन में दुख आता है, सैडनेस आती है, बट कौन इन सब चीज़ों से हमको आगे रखता है, कौन इंथुजियाज्म को होपफुल रखता है हमारे, वो है ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ इज कॉल्ड, जो ये पृथ्वी है, जो अर्थ है, उस पर ह्यूमन की कमी हो गई है। ऑफ नोबेल नेचर, वो ह्यूमन जो जनरस हैं, जो नोबेल हैं। नोबेल पर्सन का क्या मतलब हुआ? द पर्सन हु आर लिविंग फॉर अदर्स, हु आर नॉट टेकिंग केयर, और हु आर नॉट सेल्फिश, और हु आर नॉट लिविंग फॉर द सेल्फिश मीन जो दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों की कमी है, हमारी जो धरती है उस पर कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, तो इन सारी कमियों से हमको कौन दूर रखता है? द ब्यूटीफुल थिंग्स। द ग्लूमी डेज, जो हमारे सैड एंड डेज होते हैं, उनसे कौन दूर रखता है हमको? उनमें हमको कौन खुशी देता है? द ब्यूटीफुल थिंग्स, द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स। देन ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क इन बेड, जितनी भी हमारी अनहेल्दी यानी जो भी सिकनेस है हमारी, या जो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक या ट्रबल्ड हमारे डेज हैं, मेड फॉर अ सर्चिंग यस, यानी कि हम सर्च कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें इस तरह की चीज़ मिल जाए। यानी कि व्हेन यू आर वेरी ट्रबल्ड, यू आर जस्ट trying to find out the solution में if you find a think of the beauty, then you will really feel relaxed and very calm and peaceful, और थोड़ा सा healthy भी feel करते हैं हम। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from a dark spirit, ठीक है। pall आप बोल सकते हो cloud या cover, ठीक है। जो एक कवर है, जो एक क्लाउड है जो हमारे ऊपर है, किस चीज़ का? डिफिकल्टी का जो क्लाउड है, उसको कौन दूर करता है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सो द पोइट सेज दैट एवरी डे इट्स अ ब्यूटीफुल which fills with the spirit to live. It is the beauty which builds the desire to live us through. There are sad moments and cruel people around us. So here is the point want to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. It is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our heart.
So anyhow, whatever condition you will face if you are in the company of the beautiful thing. देखो beautiful things का मतलब यहाँ पे ये है कि whatever I like, it doesn't need कि you are also feeling the happiness in the same thing. But whatever you like, that is beauty for you. अगर आपको छोटे बच्चे लगते हैं तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मतलब दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर यू. इफ़ यू लाइक द कंपनी ऑफ द नेचर, इफ़ यू लाइक टू पास सम टाइम अलोन इन द रूम, आपके लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी है. वट एवर इज देयर अ थिंग ऑफ ब्यूटी. बट जब भी आप उसके पास जाते हो, उसके कंपनी में जाते हो, ऑल द सैडनेस, ऑल द ट्रबल्स, ऑल द लैक ऑफ द inhuman people on the earth, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं. Only the sense of the calmness comes in your mind. This poet wants to say this is the importance of a thing of beauty in everybody's life. ठीक है, लिटरेरी डिवाइस देखते हैं. सबसे पहले है एनाफोरा. यूज ऑफ द सेम वर्ड इन टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स. बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कोई भी सेम वर्ड आते हैं, यानी कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एकदम सेम वर्ड आते हैं, तो वहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? एनाफोरा. ऑफ नोबेल नेचर ऑफ ऑल अनहेल्थी. 1 2 3 देखो 4 5. लाइन नंबर 4 इज स्टार्टिंग विद ऑफ, लाइन नंबर 5 इज स्टार्टिंग विद ऑफ. सो ऑफ यानी कि हम बोलेंगे लाइन नंबर 4 एंड 5 हैव द लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, ऐसे बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो एलिटरेशन. अगेन द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड. बी इन बैंड बाइंड. ठीक है, ये देखो बैंड टू बेंड, ये बी जो है ये स्टार्ट है हमारा, ये वाला वर्ड ये भी स्टार्ट है. यहाँ पे इस लाइन में क्या है? लाइन नंबर 2 हैज एलिटरेशन एज लिटरेरी डिवाइस. देन नोबेल नेचर. नोबेल नेचर है हमारा, देखो लाइन नंबर 4 में ये रहा एन और ये रहा एन. लिटरेरी डिवाइस इज एलिटरेशन. देन एस इन सम शेप. किसी ना किसी शेप में ब्यूटी मौजूद है, ये रहा सम शेप, यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइस है. शेप का मतलब ऐसे नहीं कि कोई शेप होना चाहिए उसका, शेप का नहीं. वट एवर द फिगर दैट योर माइंड स्टार्ट क्रिएटिंग अबाउट द थिंग दैट यू लाइक. ठीक है, जो भी चीज़ आपका माइंड क्रिएट करता है वो एनी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट और डेफिनेट शेप कैन बी देयर, बट ब्यूटी कैन बी फाइंड इन एनी ऑफ द शेप. तो ये दिस इज सम शेप अनदर. तो यहाँ पे बैंड बेंड नोबेल नेचर एंड सम शेप एलिटरेशन. नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफर, जहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स की. यहाँ पे रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, अ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ अ लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ. ये रहा ब्रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड. ठीक है, ये रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, इसमें मेटाफर है. कैसे? रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, दो ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन से हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमारी लाइफ के हैं, एंड हमारी जो लाइफ है और जो हमको अर्थ से जोड़ के रखती है. यानी कि जैसे कि फ्लावर बैंड है. फ्लावर बेंड का मतलब क्या हुआ? फ्लावर अगर बेंड से अलग कर दोगे आप, जो सर्कल होता है इनसर्कल्ड है, बंधे हुए फ्लावर, आप उनको अलग अलग कर दोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे. वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं तभी तो वो उन्होंने एक प्यारा सा सर्कल बनाया हुआ है, एक बैंड बनाया हुआ है. सेम ऐसे ही इस अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कामफुल इस तरह की ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिन्होंने हमको बांध के रखा हुआ है. अगर वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी तो वो ब्यूटी जो है वो शैटर्ड हो जाएगी. तो क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है? जैसे एक बैंड है जो फ्लावर्स को बांध के रखता है, वैसे ही थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो हमको इस अर्थ से बांध के रखती हैं. नहीं तो इतनी परेशानियां, इतनी ट्रबल्स में what is the consequences, the news that you are hearing about committing suicide by all the peoples, what they are not finding anything hopeful for themselves in the world. बट बहुत इसके बाद भी हम लोग कितने डिप्रेस हो जाते हैं, बट उसके बाद भी ज़िंदगी चलती रहती है. वो सब चीज़ें क्या हैं? ऑल द थिंग्स दे गिव अस होप कि नहीं अभी ज़िंदगी बाकी है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे आपको भी बढ़ना है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट बाइंड अस टुगेदर. ठीक है. नेक्स्ट देखो इमेजरी, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग. मतलब इमेजरी वहां पे हो जाएगी जिस लाइन में आपका दिमाग इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दे. आपने जो भी पोइम पढ़ी है, कोई भी लाइन आप, भाई आपके दिमाग में इमेज बन गई, बस इमेजरी लिटरेरी डिवाइस आ जाती है. अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस. आपने अगर मैंने बोला फ्लावरी बैंड, हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ एक बैंड है, उसमें चारों तरफ फूल फ्लावर्स लगे हुए हैं. ठीक है. तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो जिसका डेफिनेट शेप हो और आपका माइंड उसकी इमेज बनाने लगे तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी? इमेजरी. नेक्स्ट इज इन्वर्जन, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन रिवर्स. आर वी रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड. ये इन्वर्जन का मतलब होता है जब सेंटेंस फॉर्मेशन को रिवर्स कर दिया जाता है. लाइक आर वी रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पर ये बताया गया है आर वी रेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, बट इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है. कायदे में इसके बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए बिकॉज वी आर आस्किंग इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट. बट यहाँ पर
पोइट ने क्या किया है, पोइट हैज जस्ट कन्वे द थॉट इन द फॉर्म ऑफ, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कहाँ होता है, जहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। आई होप दिस पैराग्राफ, दिस स्टैंजा इज क्लियर। नेक्स्ट, such the sun, the moon, trees old and young, is sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling convert make against the hot season the mild forest break। स्प्राउटिंग का मतलब निकलना, जिसको आप बोलते हो ना कली निकलना, या जो हम खाते हैं स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुर, अंकुर निकलना, ठीक है। एंड देन डेफोडिल्स आर द फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं प्यारे से। एंड हियर ग्रीन वर्ड हैज कम फॉर द फॉरेस्ट, एंड रिल्स, रिल्स यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम के लिए आया है, तो आप बोल सकते हो वाटर स्ट्रीम, जो पानी की जो छोटी छोटी जलधारा होती है उसके लिए, या छोटी रिवर होती है उसके लिए आप बोल सकते हो, तो वाटर स्ट्रीम। एंड देन गेंस्ट, गेंस्ट आया है आपके अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो साइलेंट है। सो हियर वो कह रहे हैं, अब वो इस स्टैंजा में इन लाइनों में वो ब्यूटीफुल थिंग्स बता रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि ब्यूटीफुल थिंग्स ये करती हैं वो करती हैं, तो अब बता रहे हैं कि भाई प्रेजेंस क्या है। अब वो बता रहे हैं कि नेचर में कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। जॉन कीट्स इज टेलिंग अबाउट दैम। एक सन, सन इज ब्यूटीफुल, मून इज ब्यूटीफुल, ट्रीज ओल्ड, मतलब जो बड़े ट्रीज हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, या जो अभी नए ट्रीज खिलने वाले हैं जो छोटे हैं, यंग मतलब जो छोटे ट्रीज हैं। स्प्राउटिंग का मतलब जो अभी अभी बीच से निकले हैं। शेडी बोन फॉर सिंपल शीप, शेडी बोन इज कॉल्ड द, जिसको हम बोलते हैं आशीर्वाद, द गुड ओमेन या विश। सिंपल शीप इज कॉल्ड अ नॉर्मल पर्सन या अ नॉर्मल क्रीचर। एंड सच अ डेफोडिल, डेफोडिल्स आर द फ्लावर्स, ग्रीन वर्ड दे लिव इन, ये सारे कहाँ रहते हैं, ग्रीन वर्ड में रहते हैं। Daffodils means flower, and this sprouting and young and old trees, these all you can find in the nature. Green word is called nature, and clear rills, ये भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। ये सारी चीज़ें ब्यूटी की चीज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बताए हैं, दैट योर माइंड स्टार्टेड मेकिंग। देखो आपके माइंड में इनकी इमेजेस बनने लगी, यानी कि ये क्या हुआ, ये सारी इमेजेस हैं, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस, जो भी आपका माइंड इमेजेस बनाना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें उन्होंने क्या बताई हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड। ये हमारे सामने है, प्रेजेंट है। दैट आर themselves a cooling convert being against the hot season। ये चीजें हैं जो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं। कूलिंग इफेक्ट का मतलब होता है सूदिंग पीस। शेडी, आप सनलाइट में हो, सनलाइट इज इनडायरेक्ट सिंबल ऑफ द डिफिकल्टीज, ट्रबल। सनलाइट में आपको डिफिकल्टी होती है जस्ट बिसाइड द विंटर सीजन। अदरवाइज कूलिंग मतलब क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट, आप शेड में हो, पीस में हो, कंफर्ट में हो। तो जब भी जो भी हॉट सीजन का मतलब डिफिकल्टीज, हॉट सीजन का मतलब एक इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, जो डिफिकल्टीज या ट्रबल्स हैं हमारी लाइफ की, उनमें हमको कूलिंग कंफर्ट कौन सी चीज़ें देती हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर में मौजूद हैं वो हमको क्या देती हैं, बहुत कंफर्ट देती हैं। सो here the poet described the beautiful things which are present on earth like sun, moon, trees, flowers and rivers, and he says that all these things are like the blessing bestowed on the creatures on the earth। अच्छा, अगर आप बोलो यहाँ पे शीप क्यों आया, तो शीप की जगह कुछ भी लिख सकते थे। शीप इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रीचर, कि जैसे शीप है उसको ये सारी चीज़ें कंफर्ट देती, तो शीप की जगह आप कुछ भी, वी आर हियर लाइक अ क्रीचर, अदर एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी क्रीचर हैं सबको बहुत सूदिंग इफेक्ट देती हैं। He further described that the trees provide us with the shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during the summer. All these are the beautiful things of the nature like a boon for us। ठीक है, बहुत गर्मी है, आप क्लियर रिल्स वाटर के पास जाके बैठ गए, आपको कूल इफेक्ट आ गया, ट्री की शेड में बैठ गए, आपको कूल इफेक्ट आ गया। सो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बून है, ब्लेसिंग है। एंड ब्रेक इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ द स्लो डाउन। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये लाइन जो है वो आगे कनेक्ट हो रही है। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं पहले। एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड, ये आया है यहाँ पर एस। स्प्राउटिंग शेड, ये देखो ये आया है हमारा स्प्राउटिंग एंड शेड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। देन सिंपल शीप, अगेन इट इज रिपीटिंग सिंपल एंड शीप। वाई इट इज कंसिडर्ड, अलग अलग इसको कंसिडर कर सकते हो या आप एक लाइन में भी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो ब्रेक, कोई कॉमा नहीं है, तो एस 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 एस। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो कूलिंग कन्वर्ट, ये रहा आपका, इसमें ये एक लाइन में कूलिंग, सी से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड, तो एलिटरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमेजरी,
इमेजरी बहुत सारी हैं, देखो डेफोडिल्स एंड ग्रीन वर्ड, दे लिव इन देन क्लियर स्ट्रीम रिवर, जितने भी मैंने स्टार लगाए इनमें सब में योर माइंड स्टार्टेड मेकिंग इमेज ना, तो इमेजरी हो जाएगा। एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड प्लेस टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड को पास में रखते हैं तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है, एंटीथेसिस। यहाँ पे क्या है, दो एकदम अपोजिट वर्ड, ओल्ड एंड यंग, ये दो वर्ड हैं, ये बिल्कुल अपोजिट हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा, एंटीथेसिस। ठीक है, ये रहे ओल्ड एंड यंग, ये दो वर्ड हैं, एंटीथेसिस लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर। रिच विद स्प्रिंकलिंग, अभी देखो इसको ज्वाइन करना है इस लाइन से, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द स्लोइंग डाउन, so the mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the tombs we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. Grandeur is called high rank of the socially important, बहुत जो बड़े होते हैं, high rank के होते हैं सोसाइटी में. Mighty is called enormous, very huge, strong we can say. Immortal is called never dying, okay, that is immortal, अमर जिसको बोल सकते हो. Brink is called age. So here the poet is saying that the poet is just taking the description of the beautiful, other beautiful thing that are present on the earth. Musk rose bloom, यानी कि रेड कलर का जो वेलवेटी रोज है वो कहाँ पे है, सी वो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मिड फॉरेस्ट है, आप पूरे फॉरेस्ट में चले जा रहे हो, वहाँ पे पूरे में ग्रीन 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 ग्रीन, बट ये प्रोसेस ये एक तरह से मोनोटोनियस है कि एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग ग्रीन, बट द मोनोटोनियस दिस कंटिन्यूटी इज ब्रेक और द स्लो डाउन बाय मस्क रोज फ्लावर. जब फॉरेस्ट के बीच में इतनी बड़ी ग्रीनरी के बीच में एक प्यारा सा फ्लावर रेड कलर का ब्लूम रोज फ्लावर देखते हो, तो दैट इज रियली लुकिंग एंड स्प्रिंकलिंग द ब्यूटी एंड सच टू द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स. एंड सच ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक मस्क रोज, एंड जब मस्क रोज को देखते हैं उसका नाइस विजुअल, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका अरोमा. नाउ ही वॉज डिस्क्राइबिंग दैट द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर इज कॉल्ड बहुत वी कैन से ना, जो प्रेस्टिजियस लोग होते हैं, हाई रैंक होते हैं. डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो कहानियां हैं, जो माइटी डेड है, माइटी डेड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल, वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स में आते हैं. दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल. वाई? बिकॉज ब्यूटी गिव्स यू समथिंग, इट नेवर आस्क यू एनीथिंग. ब्यूटीफुल जितनी भी चीजें होती हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती हैं, लेती नहीं है. सेम एज द माइटी एंड स्ट्रॉन्ग एंड द पीपल हु डाइड फॉर द अदर पर्सन, वो किसके लिए? दे आर नॉट आस्किंग फॉर देमसेल्व्स एनीथिंग, दे आर गिविंग देयर लाइफ फॉर यू. तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो माइटी डेड हैं, अगर आप उनकी स्टोरी सुनते हो, उनके बारे में सोचते हो, वो हाई सेलिब्रिटी हैं, बहुत हायर रैंक पे हैं सोसाइटी के, वो भी ब्यूटीफुल थिंग में आते हैं. ऑल लवली टेल्स, उनकी जितनी भी स्टोरी हैं, जो हमने सुनी है, जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक एंडलेस इमोर्टल ड्रिंक है. इमोर्टल ड्रिंक आप बोल सकते हो जिसको मीन्स अमर, जो एक तरह से जो वी कैन से ना अमरता का इस तरह से कोई ड्रिंक, या जो जिसको पीकर आप अमर हो जाओगे, मतलब ये चीज़ें कोई भी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है. तो यू आर जस्ट सिटिंग नियर द फाउंटेन, हम एक ऐसे फाउंटेन के पास बैठे हैं जिसका जो पानी है वो अमरता से भरा हुआ है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो कहाँ पर बैठे हुए हैं? द फाउंटेन मीन्स द ब्यूटीफुल थिंग, जिनके हम कंपनी में हैं, और वो ब्यूटीफुल थिंग कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कहाँ से आ रहा है? ये है इमोर्टल थिंग दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द गॉड. हेवन में वी आर कंसीडरिंग, हम लोग सोचते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि हेवन में गॉड रहते हैं. तो गॉड के हेवन से जब ऊपर से आ रहा है, मतलब गॉड हैज़ प्रोवाइडेड. नेचर में जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, किसने प्रदान की है हमको? गॉड ने हमको दी हैं. So the poet further carries on with the description of more beautiful things present on the earth. यहाँ पे मस्क रोज है, ये भी इमेजरी में आ जाता है, आपका तुरंत इमेज बननी शुरू हो गई. एंड मोर ब्यूटीफुल थिंग प्रेजेंट ऑन अर्थ सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोज विच हैव सच अ नाइस फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटीफुल लुक एज वेल. Then he described the tale of the mighty warriors, या story of the mighty warriors laid with their life and their countries for the humanity. उन्होंने अपनी जान दे दी. And he says that these beautiful things are the gift from God for all of us. They are like the nectar given by the God to us, and these are those beautiful which are immortal, gives us the reason to live. And this earth, despite having so many sorrows in the life, बहुत सारी परेशानियां हैं इस धरती पर, बट हमारे लिए कुछ है, ऐसा है इमोर्टल दिन जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसके पास जाके हमको हमेशा अच्छा लगेगा. वो क्या चीज़ें हैं? थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रेजेंट इन द नेचर गिवन बाय द गॉड. लिटरेरी डिवाइसेस, एलिटरेशन.
सबसे पहले देखते हैं कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड है, हैव हर्ड। हैव हर्ड में रिपीटेशन ऑफ एच इज देयर, ये रहा आपका हैव एंड हर्ड एलिटरेशन। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर, immortal drink, beautiful objects of the nature are forever like the never ending portion of the drink. So immortal drink में दो ऑब्जेक्ट, कौन सी चीजें हो गई हमारी, दो ऑब्जेक्ट, एक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द अर्थ और इमोर्टल ड्रिंक जो हेवन में होता है। इमोर्टल ड्रिंक का क्या मतलब, वो जो कभी खत्म नहीं होगा, ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब वो भी कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये हो गया हमारा इमोर्टल ड्रिंक। जो ड्रिंक हो गया वो क्या हो, किससे कंपेयर किया है हमने, इमोर्टल ड्रिंक कंपेयर किया है हमने ब्यूटीफुल थिंग्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी लिटरेरी डिवाइस, दैट इज राइम। Rhyme scheme is used every stanza for the poem, forever, never, keep, sleep, that, read. Rhyme scheme का मतलब आप लगा सकते हो whatever the word are rhyming. Now imaginary, imaginary कहाँ पे है, bushes full of musk roses। जैसे ही हमने musk roses कहा, bush यानी कि पूरी जो musk rose का plant है that comes in your eyes, sprinkling of the fair musk rose blooms, book describing valor of the fighters, valor या we can say the might, the strength of the fighters। तो आपको tales और story जो भी आपने सुनी है that comes just throughout your mind, grandeur of the dead and God providing us with the best thing। तो आप जैसे ही God बोलते हैं तो God का भी एक image सामने आ जाता है। तो these all are having the imaginary literary device। I hope this stanza is clear as well। अब हम देखते हैं list of the things, these all lines we have divided in 4 parts and I give you the explanation with literary device। अब some of the main thing, इस poem के बारे में जो main चीज़ें हैं वो discuss कर लेते हैं। list of the things of beauty, कौन कौन सी beautiful thing है जो poet ने describe की हैं। उन्होंने बताया है sun है, moon है, शेडी ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स, ये रहा डैफोडिल फ्लावर्स, ठीक है। जस्ट एट द बैंक ऑफ द रिवर ये खिलते हैं, पीले रंग के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे फूल होते हैं, बंचेस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं इन अ लाइन। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, ये भी ब्यूटीफुल थिंग है। दैन डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर्म्स वेयर फ्रेगनेंट मस्क रोज ब्लूम, ठीक है। ये पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है, बीच में ब्लूम्स। एंड टेल्स ऑफ द हेरोइक मैन who sacrifices their life, these all are the things of beauty that are mentioned in this poem। Up some of the things that cause suffering or we can say the negative words that are described or negative things, क्या बताया गया है, desire to offend other, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन पर अटैक करना, hopelessness, this is again suffering, cause of the suffering, lack of noble person या generous person, kind person, bad health, then unhappiness, then gloom and darkness। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको sadness, they are causing, they are the cause of your sadness, and all those things who are removing all these sadness, these all are things present in the nature, they are removing all these things। Now at the end of this poem, just go through with the stanza। आपके जो poem में है ज़्यादातर extract based question आते हैं, तो I have tried to include the extract based question instead of just giving them as it is। तो ये हमारा stanza है, and such too से लेकर और heavens bring, लास्ट जो लाइन है वहाँ से है ये questions। Name of the poem and the poet, the poem is Thing of Beauty and poet is John Keats। Next question, what is the thing of beauty mentioned in these line, कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, जो बताई गई हैं इसमें, ग्रुप ऑफ द स्टोरीज ऑफ सेलिब्रेटिंग ग्लोरी ऑफ अ पावरफुल एंसेस्टर्स, एंसेस्टर आप बोल सकते हो फोर फादर्स या जो मर चुके हैं वो, और विच वी हैव रेड एंड हर्ड, जिनकी स्टोरियों के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, देन सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया। Next question, what image does the poet use in these lines? The poet uses the image endless fountain, ठीक है। कौन सा क्या image use किया है, endless fountain। Why? Because according to him, nature and other beautiful things around us are like the gift of the God that can never come finishes, and it is infinite delight and joy। Infinite is called unlimited, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो किसने दी हैं, गॉड ने दी हैं जो इमोर्टल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक ऑन अस? द इमोर्टल ड्रिंक गिव्स अस इमेंस जॉय, जॉय दैट इज एवरलास्टिंग, दैट नेवर कम्स टू एन एंड। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो हमको क्या देती हैं, खुशी देती हैं। Now ये same are the question that are repeated in the other language। Who are the mighty dead? How do we know about them? कौन है mighty dead?
जो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई वो स्ट्रांग हैं, जो मर गए हैं वो उनको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आंसर है आर एंसेस्टर। कौन है हमारे जो एंसेस्टर हैं जिन्होंने क्या किया है? दे वर ग्रेट इन देयर ओन वेज एंड द डेड एम्परर्स हैव बीन रेफर्ड टू द माइटी डेड। एम्परर्स जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया, जिन्होंने ग्रेट वे अपनाया फॉर द वी कैन से ना द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, दे आर regarded as the ancestor or mighty dead. Then we come to know about them by reading or hearing valorous tales. कैसे पता चलता है हमको उनके बारे में? हमने उनको देखा तो है नहीं ना, उनके साथ रहे हैं भाई, उनके बारे में हम सुनते हैं। वेलोरियस या स्ट्रेंथन जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, वो सुनते हैं हम उनकी, which speak of their innumerable sacrifices. Innumerable is called immense, numberless sacrifices जो उन्होंने दिए, वो हमको कैसे पता चलेंगे? उनकी स्टोरी जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे। सोर्स ऑफ द मोटिवेशन, वो क्या किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं? देयर स्टोरीज, ठीक है, देयर इंसिडेंट्स, वो हमारे लिए एक सोर्स है जो हमको मोटिवेट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमको लगता है वो परेशानी सिर्फ हमारी लाइफ में है। नो, द सेम और द रदर मोर डिफिकल्टीज हैव कम इन दोज पर्सन्स लाइफ एंड हाउ दे डील विद दोज प्रॉब्लम्स, ओके, एंड देन दे कम आउट एज अ हीरो। तो ये चीज़ें हमको मोटिवेट करती हैं एंड देन वी फाइट विद द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? एंडलेस फाउंटेन, कैसे पता चला उनको भाई? क्या बता रहे हैं वो? एंडलेस ब्यूटी कैसे है? एंडलेस फाउंटेन किस चीज़ का? ऑफ जॉय, जो खुशी है वो कभी खत्म नहीं होगी। किस चीज़ से? इज द इमेज दैट हैड बीन यूज्ड टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर एन एटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हमेशा सबको मोटिवेट करती हैं। अगर हम इस जनरेशन में हम ले रहे हैं मोटिवेशन उन लोगों की स्टोरीज से, उन्होंने भी किसी चीज़ से मोटिवेशन लिया होगा, उनके फोर फादर ने भी। यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग है वो मोटिवेशनल अटर्नल मटीरियलिस्टिक थिंग है जो हमारे सामने है और हम उनको यूज कर सकते हैं। एंड दे आर द प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द हेवन दैट इज कॉज द इनफाइनाइट प्लेजर एंड delight given us by the God. Next is, what is the effect of the immortal drink? The immortal drink that nature's endless fountain pour us gives us the immense joy and pleasure. क्या फायदा है भाई इमोर्टल ड्रिंक का? क्या होता है भाई? हमको खुशी मिलती है। इमोर्टल ड्रिंक क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी, जितनी आप कंपनी में उनकी रहोगे उतनी आपको ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्टोरीज। स्टोरीज के लिए कौन सा वर्ड आया है? टेल आया है। एंड मैग्निफिसेंस के लिए कौन सा वर्ड आया है? ग्रैंडियर वर्ड आया है। वी हैव डन, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस से लेकर डार्क स्पिरिट तक, इन लाइनों से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेम इज देयर, व्हाई आर वी डेस्पोडेंट? ह्यूमन लाइफ, डेस्पोडेंट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड या सैड। हम क्यों हैं भाई डिप्रेस्ड? ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, बहुत सारी परेशानियां, एफर्ट्स आते हैं। वी एड टू आवर ट्रबल्स एंड मेक आवर लाइफ्स मोर डिफिकल्ट बाय फॉलोइंग इविल वेज, हम उसको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर लेते हैं evil ways चुनकर। We hurt others as well as ourselves, this makes us desperate। जब हम परेशान होते हैं तो हम खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, एनवायरमेंट पूरा ग्लूमी डेस्परेट हो जाता है, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग और क्रिएटिंग अ सैड एनवायरमेंट। दिस इज हाउ वी आर मेकिंग अ सेल्फ डेस्परेट। नेक्स्ट इज, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट? The various objects of the beauty around to removes the pall of the dark। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ब्यूटी के वो हटाते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी, उनके पास शक्ति होती है कि हमको हैप्पी कर सकें। भाई कैसे ब्यूटीफुल थिंग? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट गो एंड हैव अ वॉक इन द नेचर। आप नेचर में जाते हो, खुली हवा में जाते हो, थोड़ा तो मन शांत होता है, कितना अच्छा लगता है। सो दे व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, यू आर हैविंग द कंपनी ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। इस लाइन का क्या मतलब है? द पोइट हैव मीन्स दैट द वर्ड लैक्स इन मैन ऑफ नोबल नेचर। लैक्स इज कॉल्ड कमी है। पोइट के अकॉर्डिंग इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। एंड द क्वालिटीज, these are the few people who are noble in character, most of the people are self centered and pursue evil ways। जो नोबल नेचर के लोग हैं वो बहुत कम हैं, बट जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो हमेशा गलत रास्ते अपनाते हैं, वो जो लोग हैं वो भरे हुए हैं पूरी दुनिया में। तो जो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा जो बुरे लोग होंगे तो बुराई ज़्यादा होगी, अच्छे लोग कम हैं तो अच्छाई को हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द सीरीज, व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे? द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स इन आवर माइंड एंड स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड्स विद द अर्थ। Every day these bonds get strengthened by the flowery bands that we prepare।
क्या होता है जब आप कोई भी अच्छी चीज़ें मेमोरी जो होती हैं आप हमेशा उनको ध्यान रखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ द फोटोग्राफ्स, स्टोरी, कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल्स, कुछ भी होता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगा, वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में इम्पैक्ट हो गई है। तो व्हाट वी आर डूइंग व्हेन एवर वी आर फीलिंग सैड और ट्रबल और डिफिकल्टीज, तो हम क्या करते हैं, हम उन ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगते हैं। तो इट्स सेल्फ यू विल रिजुविनेटेड योर सेल्फ, आप अपने आप को अपने आप काउंसिल कर लेते हो एंड अगैन यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो क्या कर रहे हैं हम, एवरी डे वी आर रेदरिंग द मेमोरीज, हम लोग मेमोरीज को, अच्छी अच्छी मेमोरीज को चुन चुन कर उनको बुनते हैं, जैसे कि एक फूलों के मैट को बुना जाता है। नेक्स्ट इज विच ईवल थिंग्स डू वी पजेस एंड सफर फ्रॉम, कौन सी चीज़ों को हम पजेस करते हैं जो खराब हैं। Human suffers from the hopelessness and sadness. A poor style of living make us grim. Grim is called serious. जो हमारी गलत तरीके हैं, गलत आदतें हैं, उससे हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाती है, होपलेसनेस एंड सैडनेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने आप होती हैं, यू आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑफ दैम, मीन दे आर नेचुरल, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्रिएट करते हैं अपने लिए, एंड दैट्स वाई नाउ वी आर क्लच इन दैट होपलेसनेस। हमारे लिए कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती है, हर चीज़ को आप दोष नहीं दे सकते कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने क्रिएट की हैं, बट उसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको भी इम्पैक्ट करेंगे, दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज हम लोग खुद बनाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग होपलेसनेस एंड सैडनेस। Next is, what are the circumstances that contributed towards making human unhappy and disillusioned with life? कौन सी ऐसी circumstances होती हैं जो हमको हैप्पी, अनहैप्पी या डिसइल्यूजन कर देती हैं। होपलेसनेस, यहाँ पे हमको सारे कौन से वर्ड लिखते हैं, नेगेटिव वर्ड जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। hopelessness, sadness, lack of noble ways a part of the human life. We harm ourselves following unhealthy and wicked paths. Unhealthy हो गया, wicked paths हो गया. Circumstances contribute towards making human unhappy and disillusioned with the life. ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगी, if these things are the part of your life, then happiness can't be the part of your life. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what removes the pall from a dark spirit? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनको दूर कैसे कर सकते हैं। Anything beautiful surrounding, even memories or the beautiful experiences remove the pall of a dark spirit. अब आप बोलो कि मैम आपने कहा था कि भाई बाहर जाओ, नेचर की सैर करो या नेचर के कंपैरिजन में रहो, बट देयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक यू आर नॉट हैविंग द टाइम, यू आर नॉट हैविंग द पॉसिबिलिटी, देयर इज नो नेचुरल एनवायरमेंट बिफोर यू, सो इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट हैव द ब्यूटीफुल मेमोरीज. व्हाट कैन वी डू? वी जस्ट क्लोज आवर आइज एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग द डेज यू हैव स्पेंट इन द company of the beautiful things, whatever you like, beautiful memories, कोई भी चीज़ें, अगर if you are away from your home तो you just start memorizing your home. This is also a memorable, or the things of beauty that can means make you feel you very fresh and fill you with the enthusiasm. ठीक है, तो जितने भी हमारे memories और experiences हैं वो भी beauty, things of beauty में आते हैं. चलो नेक्स्ट चलते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी से लेकर स्पिरिट तक 4 क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज ब्यूटी हेल्प्स अस व्हेन वी आर बर्डन्ड विद ग्रीफ? सम शेप ऑफ ब्यूटी. Whenever we look at the beautiful object, we are filled with the comfort and joy. When we are burdened with the grief, the thing of beauty comes as a ray of hope. कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा दुख है, grief is called sadness, तो जो beautiful thing है वो एक ray of hope, एक मतलब लगता है कि हाँ something is there that we should not keep the spirit to live. ठीक है, वो जो चीज़ होती है that makes us forget the sorrows and suffering at least for some time. थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो आप अपनी परेशानी भूल जाते हो, फिर क्या होता है, वो जो थोड़े टाइम के लिए आप पीसफुल हो वो एक मेमोरी बन जाती है. तो अगैन यू आर हैविंग एन एसेट टू रिमेंबर, वो एक मेमोरी आप बाद में फिर से याद कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन is identify the figure of speech in the above line and explain the beauty. This remain. Beauty is an abstract idea. Beauty अगर आप बोलोगे तो एक abstract idea है, सबके दिमाग में अलग अलग आ रहा है. जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट आए कि हाँ भाई गॉड की मूर्ति है वो ब्यूटीफुल है, फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है. नो, किसी के लिए मेमोरीज ब्यूटीफुल हो सकती है. नो, मेमोरीज आर नॉट हैविंग एनी डेफिनेट आइडिया. ठीक है, किसी के लिए पीस हो सकता है, लव हो सकता है, ठीक है, कामनेस हो सकती है, बट दे आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. नो स्पेसिफिक शेप, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है. द पोइट हियर मीन्स ब्यूटी इन सम ऑफ हर सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट विच प्लेसेस अस. बट हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह के जिनकी डेफिनेट शेप है, जो प्रेजेंट है नेचर में, जो हमने पढ़ा लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, वो यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन हियर एज वेल. ठीक है, तो वो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हमको खुशी देते हैं. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन्स. इन लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स सेम.
लिटरेरी डिवाइसेस, जो अभी मैं हम लोग पढ़ रहे थे उसको ही बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं जो आप पढ़ते हो अलंकार, ठीक है। The above line present an example of metaphor. कौन सी literary device है यहाँ पे? Metaphor. Our souls are steeped in the sadness and disappointment which are compared to pall of shrouds covering the dead. जो सैडनेस है, जिसमें हमारा स्टीप्ड सैडनेस किससे हो गया है? जो सोल, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, वो किससे कवर हो गया है? सैडनेस से। हैप्पीनेस उसमें नहीं आ पा रही है, यू आर नॉट एबल टू सी द हैप्पीनेस। वाई? बिकॉज यू आर हैविंग अ कवर ऑफ डार्कनेस। उसको किससे कंपेयर किया गया है? सेम एज वी हैव पाल और श्राउड कवरिंग द डेड। श्राउड इज कॉल्ड कफन, जैसे कफन डेड बॉडी को कफन कवर कर लेता है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू आउट दैट। सेम एज हमारी जो हार्ट है उसको सैडनेस ने कवर कर रखा है। दैट सो यहाँ पर कौन सी है? शेप ऑफ ब्यूटी, ये फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। क्या? पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, यहाँ पे मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है। वाई आर आर स्पिरिट रिफर टू एज डार्क? हमारी स्पिरिट्स हैं जो, उनको रिफर कैसे किया? जो हमारे मीन्स जीने की जो एक इच्छा है उसको कैसे उन्होंने डार्क बताया है? आर स्पिरिट्स आर डिजेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम सैडनेस। कैसे हो जाती है हमारी स्पिरिट डिजेक्टेड? बहुत बहुत ज़्यादा जब सैडनेस आ जाती है एंड डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, विच मे बी द रिजल्ट ऑफ आवर ओन इविल एक्शन। हम क्या करने लग जाते हैं? हम कुछ ऑड वे में रिएक्ट करने लग जाते हैं। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर इन डिफिकल्टीज और ट्रबल देन यू कैन नॉट थिंक इन अ राइट मैनर, you are not able to tackle that situation, and if you cannot think in a right manner, you cannot do in a right manner। तो हम लोग गलत तरीके से एक्शन करने लग जाते हैं। So the poet refers to them as dark because of the hopelessness we feel। dark का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आप सैड फील करोगे मीन्स वी आर फेसिंग द डार्क सिचुएशन। Therefore से लेकर darkened way तक, what are the flowery bands that bind us to the earth? Answer is here the beautiful and pleasant thing have been referred to as flowery bands। जैसे कि हमारा beautiful things हो गया, some of the earth that bind us to this earth on the way, keep us going, the memory of the beautiful experience। ये one of the example helps us to strengthen our bond with the earth, ठीक है। हमारा यानी कि अर्थ से कौन बॉन्ड बनाकर रखता है? एक तो नेचुरल थिंग्स तो हैं ही, और दूसरी क्या चीज़ें हैं? द एक्सपीरियंसेस एंड द मेमोरीज ऑफ द ओल्ड गुड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू द अबव लाइन कन्वे? द मैसेज दैट दीज लाइन्स कन्वे इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। क्या है? वर्ल्ड हमारा सैडनेस से भरा हुआ है, डिप्रेशन से भरा हुआ है। पीपल हैव बिकम सेल्फिश। लोग कैसे हैं? वर्ल्ड कैसा है? सॉरोनेस से भरा, सैडनेस से भरा हुआ है। पीपल कैसे हैं? सेल्फिश हैं। एंड स्कैरसिटी ऑफ द नोबेल पीपल, बुरे लोग ज्यादा हैं और अच्छे लोग कम हैं। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन। वाई इज देयर एन इनह्यूमन डर्थ ऑफ द नोबेल नेचर? This is the again the explanation before this question। Despite this life is possible because there are some beautiful things around us। वर्ड में इतनी सैडनेस है, आप इतने सेल्फिश हो, बट फिर भी जो वर्ड है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वहाँ पे जो हमको हेल्प करती हैं to look towards the positive side of life। because of these beautiful things you are just having the positive attitude towards the life। it is the beauty of these things which brings a smile on our face and gives us happiness in our life। you are all alone living in a hostel, far, very far away from your home, you are feeling very depressed, pressure of the exams, pressure of the studies, the burden of so many things, living or the difficulties living in metro city, in one of the metro cities alone, fighting with everyday problems। कितनी सारी चीज़ें हैं, बट वेन एवर यू आर स्लीपिंग, क्लोजिंग योर आइज एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग द डेज यू हैव स्पेंट विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, हाउ यू जस्ट वेंट आउट एंड हैव फन, ये सारी चीज़ें मीन्स इट विल डेफिनेटली रिलैक्स योर हार्ट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो आपके फेस पे स्माइल आ जाती है वेन एवर यू आर रिमेंबरिंग द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, या जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में जब भी आप याद करते हो, ऑलवेज अ स्माइल कम्स ऑन योर फेस, राइट। सो यहाँ पर इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबेल नेचर मतलब फ्यू पीपल हैं, जो बहुत कम लोग हैं, they are rise above from the petty differences to be generous towards other। these days people are mostly selfish and do not think about others। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, otherwise all are thinking about themselves।
Last question is what do you understand by unhealthy or over darkened ways? इसका क्या मतलब है भाई unhealthy and over darkened ways? The unhealthy or over darkened ways refer to the trails and tribulations in our life. जो हमारे यहाँ परेशानियाँ आती हैं लाइफ में and dishonest and unfair means of the people adopt achieve the goals. अगर आपकी परेशानियाँ हैं और प्रॉब्लम्स हैं तो obviously you are being tested by the time that how much patience you have. इफ़ यू आर नॉट हैविंग द पेशेंस, आपको जल्दी जल्दी बस अपने गोल को अचीव करना है, मुझे ये चाहिए एनी हाउ, ठीक है, चाहे मीन्स आई हैव टू जस्ट ऑप्ट अ रॉन्ग वे बट मुझे ये चाहिए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम. तो यही होता है कि अगर आप अडॉप्ट करोगे अलग गलत चीज़ें तो आप क्या होगे, यू आर बिकमिंग होपलेसनेस. ठीक है. नाउ हियर द this is the stanza, I think it's from starting a thing of beauty से लेके quiet breathing. How does a thing of beauty remain joy forever? A thing of beauty, it provides eternal and everlasting. Simple. हमेशा के लिए रहने वाला joy मिलता है हमें उसको, and then whenever we are in the pensive mood or passive mood, we can say we can relieve the joyful experience and happiness. Means प्रॉब्लम और ट्रबल्स हैं वो टेम्पररी हैं बट ब्यूटी एवर लास्टिंग है. आप कभी भी जाओगे दे विल देयर फॉर यू. मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ जॉय विच अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस अ जॉय. अभी हमको दो सोर्स बताने हैं, तो थिंग ऑफ ब्यूटी के बहुत सारे सोर्स हमने पढ़े थे. तो अ क्वाइट बोअर ऑफ द रेस्ट पीसफुली एंड अ ब्लिसफुल स्लीप. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मिला है, मीन्स यू आर अंडर द शेड ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स. अगर आप पीसफुल हो, मीन्स इफ योर माइंड इज पीसफुल एंड इफ यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप, मीन्स दीज आर द सोर्सेज ऑफ द जॉय. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इसका क्या मतलब है? The joy that a thing of beauty gives is eternal. It never loses its importance but only increases with the time. जो भी ब्यूटीफुल थिंग है वो हमेशा परमानेंट रहती हैं. ऐसा नहीं है कि आप इनके पास जाओ आपको कुछ नहीं मिले. नो, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन द एम्प्टीनेस और होपलेसनेस. कभी नहीं जाओगे, आपको हमेशा जॉय मिलेगा. वाई? बिकॉज दे इंक्रीजेज. इनकी जो ब्यूटी है हमेशा टाइम के साथ बढ़ती जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय बोअर. ब्यूटी टाइम के साथ बढ़ती जाती है. आप ये भी बोल सकते हो द थिंग दैट वी आर नॉट हैविंग ऑल टाइम विद अस. तो उनमें क्या होता है कि वी आर हैविंग अ चार्म टुवर्ड्स दैट. ठीक है, हमेशा आपको एक अट्रैक्शन रहता है कि मैं मतलब दैट इज द थिंग दैट आई एम नॉट गेटिंग ईजीली एंड अगैन. तो उसके लिए चार्म हमेशा बढ़ जाएगा. तो उसका मतलब क्या हुआ? द ब्यूटी इज गोइंग ऑन और इंक्रीजिंग. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय बोअर. बोअर का क्या मतलब है? बोअर रिफर्स टू पीसफुल क्वाइट प्लेस, द शेडी ट्रीज. ठीक है, पीसफुल और क्वाइट प्लेस आप बोल सकते हो, शेडी ट्रीज अंडर विच यू आर देयर. ठीक है. नाउ all the paragraph I try to complete them, take out the questions मैंने कोशिश किया है. Now this at the last I have given the summary that you can go through it. आप इसको पढ़ सकते हो. The complete glimpse or the gist essence of the poem is there. So here we have completed the stanzas with literary devices, new vocabularies and some of the abstract based question, and with this we have complete the poem A Thing of Beauty. Now I'll meet you in the next video with the next chapter of first term.